Hello, my dear and lovely students of class 11. Welcome again to this lesson. Today we are doing your English lesson of textbook snapshot. Very first lesson. Name of the lesson is, as you are seeing on the screen, The Summer of the Beautiful White Horse, and this story is written by William Saroyan. As you are seeing on the screen, there is a picture of white horse too, say on your screen, and in the name also it is Summer of the Beautiful White Horse. So, introduction of the story. This story is about two Armenian cousins. What is Armenia? Armenia is a country in Central Asia. You can locate it on the world map too. In the west, Armenia, it is bordered by Turkey. In the north, by Georgia. In the east, by Azerbaijan. And in the south, by Iran. 40 degrees of latitude pass through Armenia. So you must locate Armenia country on the world map now. Armenia is very ancient country and very ancient culture, right? As our culture of India is Sindhu Valley civilization, it is parallel. So this is the story of two Armenian cousins. They live in a village of Armenia. The tribe was poverty stricken. जो ये दोनों लड़के थे, Aram and Murad. Murad is 13 years old and Aram is 9. Both are cousin brothers. And name of their tribe is Gargolinian. Here it is. Name of the tribe, Gargolinian. This tribe is very poverty stricken. Poverty stricken means very poor, grief. But yet this tribe, hallmark of this tribe, hallmark means mukhya pehchan of this tribe is trust and honesty. For 11 centuries, last 11 centuries, the tribe has been poor, but still it is known for its honesty and poverty. Mark these lines. And the story revolves around the beautiful white horse. So, in the beginning, what happened that one day Aram was sleeping in his home. Murad came riding on a white horse, and here it is important to tell that their tribe is so poor that no Garogolinian can come to on a horse because their condition is very poor and it takes a lot of money to keep a horse. So first Aram could not believe that Murad can have his own horse, but it was more difficult to believe that Murad has stolen a horse. Why? Because their tribe is known for their honesty. No Garogolinian ever have been accused or proved of stealing anything. So this is the background of the story. Now, background, why Garogolinian tribe has become so poor. जो इनकी ट्राइब है आराम एंड मुराद की, वो अब इतनी गरीब क्यों हो गई है, तो आप इसमें देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी में. द आर्मेनियन मैसेकर. आर्मेनियन massacre. Massacre means killing of people at very large scale is called massacre. हिंदी में बोलते हैं इसको कत्ले आम. So the historical background of this story goes back to 1915 AD. In 1915, the Turkish government planned to expel and massacre about 2 million Armenians living in the Ottoman Empire. And 2 million Armenian peoples were killed
and many were forcibly removed. They were made landless. All their lands were forcibly taken away from them. In United Nations also has called this a genocide officially. So what is a genocide? What is a genocide? Genocide means a premeditated and systematic campaign to exterminate an entire Armenian tribe. जब हम किसी एक विशेष समाज को पहले से ही प्लान करके, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से प्लान करके उस पूरी जनसंख्या को खत्म करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और इस तरीके से कत्लेआम करते हैं, उसको जिनोसाइड बोलते हैं। जैसे टर्की ने 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था कि कंप्लीट आर्मीनियन पॉपुलेशन को समाप्त कर देना है, रहने नहीं देना है, इनको मार देना है या भगा देना है। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों लड़के और इनका समाज क्यों अब इतने गरीब हो गए हैं। एक जगह पे इन दोनों के अंकल खुसरो कहते हैं कि ऑल आवर लैंड्स हैव बीन टेकन अवे, कि हमसे तो सारी जमीनें ही छीन ली गई है। दे आर रेफरिंग टू द आर्मीनियन मैसाकर बाय टर्की। अब देखते हैं आगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। विलियम सारोयान, देख रहे हैं, दिस इज द फोटो ऑफ विलियम सारोयान विद दिस बिग माउस्टेच। सो आपको ये समझना चाहिए विलियम सारोयान ही आर्मेनियन है, बट वो अमेरिका में रहते हैं। सो हम विलियम सारोयान को बोलेंगे ही इज एन आर्मेनियन अमेरिकन। सेम जैसे हम वी से कल्पना चावला वाज एन इंडियन अमेरिकन बिकॉज शी वाज बोर्न इन इंडिया बट टुक द सिटीजनशिप ऑफ America. In the same way, William Saroyan was born on 31st August 1908 in Fresno, California, but his parents were Armenian. So, ये about the author. आपको इनका नाम याद रखना है और याद क्या रखना है, he is an Armenian American. ओके, आगे आप चाहे तो याद रख सकते हैं ये नॉवलिस्ट है, प्ले राइट, नाटक भी लिखते हैं, नॉवल भी लिखते हैं एंड शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं। ही वाज अवार्डेड पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा इन 1940 एंड 1943 ही won the Academy Award। बस, और his best story, The Human Comedy, by the name, a film also has been made. William Saroyan died on 18 May 1981। बस, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ, देन डेट ऑफ डेथ, नेम एंड आर्मेनियन अमेरिकन एंड हिज सम लिटरेरी वर्क द ह्यूमन कॉमेडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम देखेंगे मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, द समर नाइट ऑफ ए ब्यूटीफुल white horse lesson के major characters. Who are the major characters? First is Master Aram. Master, what is written here? Master means a boy. So you can say Aram, a boy of 13 year old. Sorry, 9 year old. Murad is 13 year old and younger is Aram. Aram is the narrator and protagonist of the lesson. आराम ही इस स्टोरी को हमें बताएगा, सुनाएगा अपने शब्दों में, एंड ये प्रोटैगोनिस्ट भी है इसी स्टोरी का। तो आप वर्ड याद रख लीजिए, प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट उसको बोलते हैं हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अराउंड विच ऑल द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी ओकर्स एंड हु सीम्स टू एक्ट और स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल थ्रू द स्टोरी। उसको मुख्य पात्र को प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं, हिंदी में ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसका मेन कैरेक्टर मास्टर मुराद। मास्टर मीन्स अगेन मैं बता रहा हूँ, लड़के को बोलते हैं मास्टर बोल लेते हैं। तो मुराद टीनेजर, ये आराम का कजन है एंड मुराद
is the boy who took away the horse of a farmer named John Byrow, and Murad is the boy who learned horse riding, or he is an animal and birds lover. मुराद के बारे में ये खास याद रखनी है, यही वो लड़का है जो एक किसान जॉन बायरो का व्हाइट हॉर्स चुपके से बिना पूछे या छिपा के ले आए थे, और इस स्टोरी में दोनों ही लड़के हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, बट आराम छोटा था, वो हॉर्स राइडिंग नहीं सीख पाया और मुराद हॉर्स राइडिंग का एक्सपर्ट बन गया। और इन ट्रेट्स, आदत के रूप में या पर्सनैलिटी के रूप में, मुराद इज ए ट्रू डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो, और आदत के रूप में या पर्सनैलिटी के रूप में या व्यवहार तौर तरीके के रूप में मुराद ही वो लड़का है जो अपने अंकल खुसरो का एकदम सही डिसेंडेंट बोले तो उत्तराधिकारी या वारिस है। एंड ही इज ऑफन सेइंग एज, उनको हर बात पे वो एक ही बात बोलता है, आई हैव ए वे विद एनिमल्स, कि हमें जानवर को संभालना मुझे अच्छी तरह आता है, और ही से आई हैव ए वे विद हॉर्स। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द नाउ मेजर कैरेक्टर, अगेन थर्ड कैरेक्टर इज अंकल खुसरो, जैसा पहले रेफर बोल दिया गया, तो इसके लिए आप याद रखेंगे अंकल खुसरो इज ए ह्यूज मैन विद लार्ज मुस्टेच, होमसिक, volatile, tempered, furious, irritable and impatient person। समझ रहे हो? इतनी बात याद रखनी है कि अंकल खुसरो एक बहुत बड़े डील डोल, बड़े लंबे हट्टे कद्दे शरीर वाला व्यक्ति है, उसकी बहुत बड़ी मूंछें हैं, होमसिक, उसको घर की याद आती है बार बार, वोलेटाइल टेम्पर, वो बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देता है, फ्यूरियस, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है, इरिटेबल, हर बात पे चिढ़ जाता है, बोलता है, एंड इम्पेशेंट, उसको बिल्कुल भी धैर्य नहीं है किसी और की बात सुनने के लिए। इज होमसिक, यर्न्स टू बी बैक इन हिज मदरलैंड, वो फिर से अपनी वहीं पे जाना चाहता है जहां पर वो पैदा हुआ था, जहां पर उनके पूर्वजों की जमीन थी, मदरलैंड, मातृभूमि। ओके, he has lost everything there, लेकिन अब उनका वहां पे कुछ भी नहीं है, उनकी सारी जमीनें उनसे छीन ली गई है। आफ्टर लिविंग अर्मीनिया पर फोर्स, अब वो अर्मीनिया से उसको जबरदस्ती छोड़ के जाना पड़ा। He feels as his true home and a part of his identity have been stripped away, उसको लगता है कि जैसे उसकी पहचान ही उससे छीन ली गई है। This leads to lack of belonging to the new land of Central Valley, कैलिफोर्निया, और इससे अब वो सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया को लगता है कि ये उसमें अभी तक भी वो सेटल नहीं हो पाया है। सो ही हैड ए सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेटेड एंगर, मतलब उसमें गुस्सा है निराश होने की वजह से, क्योंकि जीवन में वो निराश हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो उसमें अभी एंगर है। एंड नाउ ओनली वी से ही से इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि किसी बात पे ध्यान मत दो, अब क्या नुकसान होगा, जो नुकसान होना था हो चुका है। स्पेशली व्हेन जॉन बायरो से, स्पेशली ज्यादा गुस्सा तब आता है व्हेन फार्मर जॉन बायरो अपना हॉर्स सर्च करते हुए उनके घर में आता है, तो वो जॉन बायरो को ही शाउट्स, क्राई एंड मेक द फार्मर साइलेंट बाय शाउटिंग दैट पे नो अटेंशन टू इट, नो हार्म। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉन बायरो स्टोरी का। जॉन बायरो इज एन असीरियन, ये सीरियाई मूल का है, लिविंग अलोन, वो भी अकेला रहता है। विजिट्स आराम्स हाउस, आराम के घर आता है। लॉस्ट हिज हॉर्स, अपने लॉस्ट हॉर्स को सर्च करने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही finds his horse and take his horse back. And John Byrow is a simple man, well tempered, and he has lots of patience. Okay, he is opposite to the character of Uncle Khosrow और The Beautiful White Horse, ये भी स्टोरी का एक बड़ा कैरेक्टर है।
ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये तो लेसन के टाइटल में ही है। तो सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड करेज, एन एम्बलम ऑफ द इनोसेंस एंड अनकैप्टिवेटेड स्पिरिट्स ऑफ द बॉयज। यहाँ पे हॉर्स प्रतीक बन गया है प्योरिटी का, करेज साहस का, इनोसेंस एंड दोनों लड़कों की बिल्कुल ही स्वतंत्र होश, जोश और सोच का। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जॉन बायरो क्रेस्ट फार्मर के बारे में बता दिया गया है, आपको यही बातें याद रखनी है। अब आते हैं कि जॉन, इस हॉर्स का भी करेक्टर एक्सप्लेन हो गया। अब आप सुनेंगे अबाउट गारो ग्लेनियन ट्राइब के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। So these boys belongs to what tribe? Or Garo Gleanian tribe is known for which special identities? Or how Garo Gleanian tribe people now cannot say that what is their regular source of income? मतलब गारो ग्लेनियन ट्राइब अब इतनी गरीबी में क्यों रहती है? गारो ग्लेनियन ट्राइब की अभी भी उन्होंने एक पहचान जो छोड़ी नहीं है, वो क्या है? ये सब बातें आएंगी, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। एन आर्मीनियन ट्राइब, गारो ग्लेनियन कहाँ की जनजाति है? आप बोलेंगे आर्मीनिया की। कहाँ की जनजाति? which has a reputation for honesty and trust that has been maintained since 11th century। 11 शताब्दी हो गई है, लेकिन गारो ग्लेनियन ट्राइब ने अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट, ईमानदारी और भरोसे की छवि बिल्कुल भी खराब नहीं की है। दो दे हैव बीन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जबकि वो अब बिल्कुल ही बहुत निहायत ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दे नेवर रिसोर्ट टू एनी अनफेयर मीन्स टू गेट मनी। वो पैसे के लिए या किसी वस्तु को प्राप्त करने कभी भी कोई गलत तरीका नहीं अपनाते हैं। और आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये गारो ग्लेनियन ट्राइब की, देखो देख रहे हो, ये उनकी जनजाति की पिक्चर है, गारो ग्लेनियन ट्राइब के मैन एंड वुमेन। आप उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस भी देख सकते हो। देख लिया? These are the pictures of Garo Gleanian tribe। ओके, और आप गारो ग्लेनियन ट्राइब के बारे में पढ़ भी सकते हैं। The members of the tribe value their pride, integrity, and beliefs in right and wrong. It is this reputation that leads to John Byron to believe that the horse the children came with must be the twin of his horse tooth by tooth। और यही कारण है कि जब मिस्टर जॉन बायरो को दोनों लड़कों के पास अपना व्हाइट हॉर्स मिल भी जाता है, तभी भी वो नहीं बोलता है कि you have stolen my horse, because he says that if you were not the son of my friends and Garo Gleanian, then I would have said that it is my horse। वो बोलता है कि यदि आप गारो ग्लेनियन नहीं होते और मेरे फ्रेंड के बेटे नहीं होते, तो मैं कह सकता था ये मेरा ही हॉर्स है, लेकिन अब नहीं कहूंगा। ये उनकी ईमानदारी का प्रूफ है। They admit that they have no money at all and get mystified over the way in which they are able to arrange for food for themselves। ऑथर बता रहा है कि गारो ग्लेनियन ट्राइब के पास कोई पैसा, आमदनी नहीं है, बस किसी तरीके से इरेगुलर वर्क, कभी कुछ काम मिल जाए कर लेते हैं, तो नहीं तो ऐसे ही बेचारे रहते हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, इसका PDF लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए, PDF लिंक नोटिस कीजिए और उसको क्लिक कर दीजिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे पूरा टेक्स्ट मैटर एंड पिक्चर्स देख रहे हैं, या आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू फील द नीड देन यू कैन टेक द प्रिंट टू। अब हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन में, तो लेकिन उससे पहले से आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे इफ यू आर न्यू देन
subscribe to this channel, like this video, and also hit the bell icon so that notification is on and you can get the notification for the future videos too. Okay, subscribe the channel. Now next in this lesson is theme of the story. Theme means the main message of this story. थीम इज द रिडेम्पटिव पावर्स ऑफ फॉरगिवनेस। भाई हमें दूसरों की गलती को यदि हम फॉरगिव कर देंगे, क्षमा कर देंगे, तो इसका जिसको हमने फॉरगिव किया है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा एंड दे विल नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन, रादर दे विल रिफॉर्म। पावर ऑफ फॉरगिवनेस इज द की टू रिफॉर्मेशन। क्षमा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाने की शुरुआत कर देता है। अंडरस्टैंडिंग, हमें दूसरों की कंडीशन को समझना चाहिए, उनकी मजबूरी को भी समझना चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के प्रति समझ रखनी चाहिए। एंड ऑनर ऑफ द कम्युनिटी आर थीम्स एनहांस्ड थ्रू दिस शॉर्ट स्टोरी। इस छोटी सी कहानी से एक समाज और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में भी उसको बताया गया है। लाइक कौन सा सोसाइटी है यहाँ पे, कौन सा समाज है? गारो-गल्नेनियन सोसाइटी ऑफ आर्मेनिया। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड बिटर ट्रुथ्स आर एब्सोल्यूट। ये कहानी ये भी मैसेज देती है कि हम मतलब कि किसी समाज के, किसी सोसाइटी के जीवन में जो इकोनॉमिक चैलेंज होते हैं, उनके सामने जो रुपए पैसे और जीविका कमाने की, लाइवलीहुड की समस्या होती है, ये कड़वी सच्चाई है। इससे वी कैनॉट टर्न अवे आवर फेस, हम मुंह नहीं फेर सकते। बट स्टिल द ऑनेस्टी शुड बी प्रैक्टिस्ड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन हम मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड ट्रस्ट, ईमानदारी, सच्चाई और भरोसा बनाए रखना चाहिए। लेट इट बी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी सर्कमस्टेंसेस में, जैसा कि गारो-गल्नेनियन ट्राइब के लोग अभी तक करते आए हैं। देयर पोवर्टी डज नॉट लिमिट द इमोशनल कोशेंट ऑफ द बॉयज। वो गरीब जरूर है, लेकिन लड़कों का जो इमोशनल कोशेंट है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखने की जो इच्छा है, वो खत्म नहीं होती। देयर लव फॉर द हॉर्स इज सिंसियर एंड ऑथेंटिक, नॉट मोटिवेटेड बाय द ग्रीड। दोनों लड़के हॉर्स को बहुत प्यार करते हैं। दे आर वेरी ईगर टू राइड हॉर्स। हॉर्स राइडिंग इज इन देयर ब्लड, दे एंजॉय इट वेरी मच, बट देयर केयर फॉर द हॉर्स इज सिंसियर एंड ऑथेंटिक। लेकिन वो इस हॉर्स का उतना ही अच्छी तरह ख्याल भी रखते हैं। नॉट मोटिवेटेड बाय ग्रीड। इस हॉर्स के लिए उनके मन में कभी भी कोई लालच नहीं आता। दे हैव ए जेन्युइन द नीड टू रिटर्न दैट डजंट बिलोंग टू देम। वो पहले दिन से ही ये सोच लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं कि बस कुछ दिन हॉर्स को रखेंगे, राइडिंग सीख लेंगे और फिर उसको वापरी तो आप पीडीएफ भी कर सकते हैं। द टाइटल सीम्स क्वाइट एप्रोप्रिएट एज द स्टोरी सेट इन समर। द बॉयज आर फ्री एंड कैन फोकस ऑन द हॉर्स राइडिंग। तो समर में ये सीजन जब इस कहानी की घटनाएं होती है वो समर है। द बॉयज आर फ्री, बच्चे फ्री हैं समर में, लाइक स्कूल वैकेशन हो जाती है, एंड दे कैन फोकस ऑन द हॉर्स राइडिंग। नेक्स्ट, ideas presented lend themselves with the fruition and full blossom of summer। जो भी आइडियाज इस स्टोरी में प्रेजेंट किए गए हैं, दे आर पैरेलल टू एज वी सी आफ्टर द स्प्रिंग सीजन, समर सीजन इज दैट फ्रूट्स बिकम राइप। ओके, जब हमें मेहनत का फल मिलता है तो समर में लड़के भी दे आल्सो लर्न हॉर्स राइडिंग। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। पूरी कहानी में दो लड़के हैं और एक उनके पास व्हाइट हॉर्स है। थ्रू आउट देयर समर एक्सपीरियंसेस
They learn essential values like compassion for the animal. और इस समर सीजन के दौरान ही with their experience horse riding or horse caring and horse returning, horse को लेके आना, horse को रखना, horse riding करना, horse का ख्याल रखना और फिर horse को उसके ट्रू ओनर के पास वापस करना, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इस स्टोरी में. एंड थ्रू पासिंग दिस एक्सपीरियंसेस द बॉय लर्न्स द एसेंशियल वैल्यूज. बच्चे जीवन का बहुत ही एसेंशियल वैल्यूज, संस्कार सीख जाते हैं. कौन से संस्कार? लाइक कंपैशन फॉर द एनिमल एंड ट्रस्ट अमंग देमसेल्फ. जानवरों के प्रति सहानुभूति, संवेदना और एक दूसरे के बीच में विश्वास. These are the result of the beautiful white horse. और ये सब कैसे सीखा उन्होंने? अपने वो उस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के साथ. तो ये है जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल. नेक्स्ट स्टोरी में है, ठीक है, स्टोरी रीचेस इट्स क्लाइमेक्स व्हेन द हॉर्स इज रिटर्न्ड इन बेटर शेप एंड टेम्परामेंट देन बिफोर and boys have a renewed sense of faith in both them and their love of their horses. और जब लास्टली ये लड़के हॉर्स को वापस करते हैं तो जो फार्मर है मिस्टर जॉन बायरो, he again visit in his सरे. सरे मीन्स हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी को इंग्लिश में सरे भी बोलते हैं. तो वो अपने व्हाइट हॉर्स एंड सरे के साथ फिर इन दोनों के घर में आता है एंड ही सेज दैट माय हॉर्स इज इन बेटर शेप, मोर पावरफुल एंड बेटर टेम्पर देन बिफोर. कि एक महीने बाद हॉर्स मुझे 45 डेज के बाद हॉर्स वापस मिला है, लेकिन हॉर्स पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा बेटर शेप, अच्छी हालत में, एंड टेम्परामेंट, और पहले से ज्यादा सहनशील, पहले से ज्यादा अच्छा हो गया. और ऐसी बात सुनने के बाद लड़कों को फिर से रिन्यूड सेंस ऑफ फेथ इन बोथ देम, दोनों को अपने अंदर भरोसा जगता है और वो मान लेते हैं कि देयर लव फॉर द हॉर्स इज जेन्युइन. कि अब हम देख लेंगे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज. हालांकि लिटरेरी डिवाइसेस लेसन के लिए नहीं आते हैं, बट समटाइम अनसीन एक्सप्लेनेशन, सीन ऐसे वो कॉम्प्रिहेंशन वो भी नहीं आएगा सप्लीमेंट्री से, तो हम इसको छोड़ सकते हैं. वी कैन फॉरगेट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस. ओके, तो अब हम देखेंगे, वी विल कम बैक एंड नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन आंसर, मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टोरी. एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे कुछ. सो लेट्स सी एमसीक्यू क्वेश्चंस. एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ द समर, और ये रहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस. तो देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्विकली. सो इफ यू आर आराम, यदि आप, जो आराम लड़का है इस स्टोरी में, यदि आप उसकी जगह पर होते तो इन तीनों में से क्या करते? ए, यू वुडंट जॉइन मुराद फॉर हॉर्स राइडिंग, कि आप मुराद को बोल देते मैं नहीं आ रहा हूं तुम्हारे साथ क्योंकि ये हॉर्स तुम चोरी करके लाए हो, मना कर देते उसके साथ जाने से. बी, यू वुड एडवाइज हिम टू रिटर्न द हॉर्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ, या आप उसको बोलते कि जाओ आज अभी से ही हॉर्स को वापस करके आ जाओ. और थर्ड, यू वुड हैव टेकन द हॉर्स एंड केप्ट इट इन ए सीक्रेट प्लेस टिल यू लर्न हॉर्स राइडिंग, या फिर जैसा आराम ने किया कि वो हॉर्स राइडिंग के लिए गया और उसने अपने कजन मुराद को बोला कि इस हॉर्स को हम वापस नहीं करेंगे जब तक मैं भी हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता हूँ. तीनों में से क्या करते हैं कि आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बट मुझे लगता है कि इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ आराम, आप भी सी यही काम करते क्या, कि हॉर्स राइडिंग अपने करते और जब तक नहीं सीखते हॉर्स को अपने पास ही रखते. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. मुराद became ready to return the horse even though आराम did not learn horse riding. मुराद ने हॉर्स को लास्टली वापस करने का फैसला किया, जबकि आराम तो बोल रहा था अभी वापस नहीं करना है, मुझे भी सीखना भी था हॉर्स राइडिंग. तो क्यों किया उसने वापस?
He knew Aram wouldn't learn horse riding. उसको लगता था कि चाहे मैं अभी कितने दिन और क्यों न रख लूं, अभी तो आराम सीख नहीं सकता हो। या horse wouldn't stay with him for a long period, या अब ये horse इनके साथ नहीं रह सकता था, horse ने परेशान करना शुरू कर दिया था। या already it is too late to keep the horse in hiding, या फिर अब इन लड़कों के लिए इस horse को छिपा कर रखना मुश्किल हो गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज जॉन बायरो ने अपने हॉर्स को एक दिन देख लिया था, अब वो इसको छिपा कर नहीं रख सकते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। जब एग्जाम में आए तो आपको यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जॉन बायरो रिमार्क दैट द हॉर्स इज ए ट्विन ऑफ हिज हॉर्स बिकॉज जॉन बायरो ने जब मॉर्निंग में ऑन द रोड इन दोनों लड़कों को हॉर्स के साथ पकड़ लिया था, तो हॉर्स को when he examined the horse into his mouth and teeth, तो उसने बोला था ये तो घोड़ा बिल्कुल हॉर्स मेरे हॉर्स का ट्विन जुड़वा जैसा दिखता है। क्यों बोला उसने जुड़वा? He failed to identify his horse, कि उसने हॉर्स को पहचानने में गलती कर दी। He had twin horses, उसके पास 2 horses थे ट्विन, एक ये था उसमें से। और सी he couldn't doubt on the Armenian children of stealing the horse, या उनको इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ कि गारो गलिनियन ट्राइब के लड़के भी कोई चोरी कर सकते हैं। ये ऑप्शन सी ठीक है। उसको लगता था गारो गलिनियन कभी भी चोरी नहीं करते हैं, तो ये हॉर्स उसका नहीं, उसका ट्विन जुड़वा जैसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, द टोन ऑफ द स्टोरी इज सैड, हैप्पी, नॉस्टैल्जिक। मतलब ये जो कहानी है इसकी टोन, मतलब इसका स्वभाव कैसा है, दुखी होने वाला स्वभाव है, खुश होने वाला स्वभाव है, या नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक होता है जब हम पुराने दिनों की याद करते हैं और उसको अच्छा बताते हैं, जब पुराने दिनों की याद में खोए जाते हैं उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। यही इस स्टोरी में हुआ भी है। अंकल खुसरो और ये लड़के एंड ऑथर हिमसेल्फ हमेशा उन दिनों की याद करते हैं जब गारो गलिनियन पीपल वर द ओनर ऑफ देयर लैंड एंड कंट्री एंड दे वर एट पार हॉर्स राइडर। हमेशा उन दिनों की पुरानी याद करते रहते हैं, तो हम आंसर करेंगे सी, नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी इज हैप्पी एंडिंग, रिग्रेटिंग, रिपेंटिंग। इस कहानी में अंत में क्या होता है? अंत कैसे होता है कहानी का? खुशी खुशी या पश्चाताप के साथ? बी ऑप्शन है। रिपेंटिंग, सेम, दुखी होने के साथ, भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया, तो आपको बोलेंगे इसमें हैप्पी एंडिंग। अंत में सब खुश हैं, लड़के खुश हैं, उन्होंने इतने दिन तक हॉर्स राइडिंग का मजा लिया। जॉन बायरो खुश है कि उसका हॉर्स उसको वापस मिल गया और पहले से भी ज्यादा पावरफुल एंड बेटर टेम्पर्ड, पहले से भी उसका हॉर्स ज्यादा अच्छा हो गया है, तो हैप्पी एंडिंग इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एट द एंड ऑफ द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर बिकॉज। अंत में लड़कों ने इस हॉर्स को उसके मालिक के पास क्यों वापस कर दिया? क्योंकि ऑप्शन है दे केम टू नो दैट जॉन बायरो हैड सीन देम विद हिज हॉर्स। उन्होंने पता लग गया था कि जॉन बायरो ने उसको, उन दोनों लड़कों को हॉर्स के साथ देख लिया है। दे वर कंसाइंड स्ट्रिकन, उनकी अंतरात्मा जाग उठी थी। मुराद न्यू दैट एनीवे आराम कैन नॉट लर्न हॉर्स राइडिंग, या फिर मुराद को लगता था कि मैं और कितने ही दिन इस हॉर्स को क्यों न रखूं, अभी आराम तो इस हॉर्स राइडिंग को सीखने वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। They came to know that John Byro had seen them with his horse, क्योंकि उनको भी लगा था कि जॉन बायरो ने उनको हॉर्स के साथ देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7, अंकल खुसरो's रिपीटेड वर्ड्स। अंकल खुसरो इस स्टोरी में बार बार कौन से शब्द दोहराता है? ए, पे नो अटेंशन टू इट, बी, आई हैव ए वे विद एनिमल्स, एंड सी, इट इज नो हार्म। सो ऑप्शन इसमें अंकल खुसरो बार बार क्या बोलता है? एक तो पे नो अटेंशन टू इट बोलता है और दूसरा इट इज नो हार्म बोलता है, तो इसका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन क्या है?
B. Both A and C. दोनों ही बोलता है. Pay no attention to it and it is no harm. So ये हो गया MCQ. So और ये था लेसन आपका The Summer Night of a Beautiful White Horse. In the end, again same thing. Subscribe and turn on the notification and put your comment too. Thank you for watching. See you in the next